Hello and warm greetings to one and all who are present out here. Today, English Zone has completed 9 golden years and I have completed 4 years over here. But this journey of 4 years is just not a time spent over of 4 years. Maybe I can say that in school I have spent 12 years, in college I have spent 3 years, and in other things I have spent 2 to 3 years. But an English Zone journey of 4 years, and especially if I talk, first I want to talk about my student life journey. That was of 6 to 8 months, and afterwards as a mentor and trainer I have now 1.5 year experience in that. Being a student, before few days in the class of Advanced Zone, I was saying that English Zone 6 months is not only 6 months. If you consider these 6 months seriously, these 6 months has the power to change your 60 years life ahead. If you're taking these 6 months seriously, so definitely this 6 months can make your life brighter and very bright and a resilient future for the next 60 to 80 years. If you are doing the effort seriously in these 6 months and realizing your potential and realizing the potential of English Zone to make your future bright, so realize and start working from the very beginning initial days. If you considering yourself that you have just joined any other institute like coachings and other schools and just started to come regular, okay, taking the classes and going back home, so this will only be helpful like that you will be learning English only. But if you're coming with a dream, if you're coming with a dedication, and if you're coming with a mindset that I want to make my life future, I want to make my parents, I want to make my teachers, I want to make my colleagues, I want to make my friends proud on me, so that can be a life-changing 6 months of your life. In my life, when I just joined English Zone, maybe when I just joined, still so many students who were my classmates are sitting here, and in the initial days they told, on the very first day I still remember the statements of Abhishek sir. We were discussing on the table after the class, demo class, and he told, this girl will be very shining in the very initial days, and she will be learning and achieving the heights in upcoming days. That was just a compliment I was taking very lightly. But after that, in 15 days, Shivraj sir was there and he asked me one question. I was standing on the podium, like all know that regular classes and all, and he asked me, where do you see yourself in upcoming 1 month? From that same day, like it was my 5th or 7th day, I answered, in upcoming 1 month, I just want myself in the top 5 students and performers of the English Zone. And within 1 month, I achieved that. Not because I had the potential. I got a platform who recognized my potential, who recognized my hobbies, who recognized the skill set, and who support. Because that time I was struggling for my identity. What career I should choose? What specific education should I pursue in the future? No matter how many books I was studying, no matter how many guidance videos I was watching. But when you get a platform, when I get a guidance, when I get a mentor who really approve the things you are doing, when you get the people who really recognize the work you are doing, so that the kind of motivation for me. In my home, no matter, like my family was very stoic in that, like if I'm studying, that is also good. If I'm watching, that is also good. If I'm watching movies, that is also good. No any kind of mentorship, guidance, and in any field. So when I just joined the English Zone and the initial days when we started to share the views like reading books, hobbies, and future plans and all, so I got the people with the like mind who supports my hobbies, who supported my career choice. And I still remember I was struggling for the dreams. Many times in your class also sir asked, what's your target, what's your dream and all. So of course we are not that much clear, and in that my life I was struggling hard. Sometime I used to say, sir, I want to become artist. Sometime I used to say that I want to do junior accountant. Sometime I used to say, sir, that in my field it is also that I can achieve, and I'm also doing and speaking nice, so I wanted to become public speaker. So one day I, Abhishek sir, and another former student were sitting, and the same topic was going on, that what will be like future plans and target and all. Sir was taking rest over here,
and we just come to sir and started to talk with him. Sir, like what's guidance, motivation, like my dream is RS, and like in my field junior accountant is also that I have connection because I'm a commerce student, so I just wanted and have the image of that even. In that sir told one thing and I wanted to share in Hindi as well. देखो आपके पास में उस टाइम सर्दी का टाइम था आई थिंक, तो सर ने, मैंने एक जैकेट पहन रखी थी, सर ने एक बात बोली थी, देखो ये आपकी खुद की जैकेट है, ये आपके पास में हमेशा रहने वाली है, कोई इसको लेके नहीं जाने वाला है, लेकिन सपोज करो आप किसी ट्रायल रूम में गए हो, ओके, वहां पे आपके पास में खूब कपड़े हैं, आप उनमें से क्या करोगे? इस जैकेट, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो स्कोप है, आपकी जो फील्ड है, उसकी नॉलेज, उसका पावर आपके पास में हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो आरएस, जिसके अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लाइक हिस्ट्री एंड ऑल दो सब्जेक्ट यूज्ड टू बी माय हेडेक दैट टाइम। सो आई सर टोल्ड, अभी जो टाइम है, अभी आपके पास में इनफ टाइम है, इसको यूटिलाइज करो अपनी आरएस का जो फाउंडेशन उसको बिल्ड करने के लिए, और जब टाइम आएगा ना तो आपकी इस जैकेट को, मतलब अपनी जो एजुकेशन है, अपना जो फील्ड है, उसको झटका के कभी भी आप पहन सकते हो। सो आई रियलाइज दैट थिंग, और अभी ये जो लास्ट 1-2 ईयर्स माय सीरियस एजुकेशन डेडिकेशन था, उसके अंदर ये बात मेरे को कई बार आई कि मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ, उसके साथ में ये जूनियर अकाउंटेंट का मेरे माइंड के अंदर हमेशा रहा है, ओके, बट हमेशा जिस टाइम के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं था, तो सर की वो बात मेरे को वापस हिट करती थी कि आपकी जो फील्ड है, आपकी जो फील्ड जिसके अंदर आप मास्टरी कर सकते हो, उसको कभी भी पॉलिश करके, साफ करके आप हमेशा उससे आउटपुट निकाल सकते हो, लेकिन जो फ्री टाइम है, जो सिचुएशन एकदम कूल डाउन है, उसके अंदर उस चीज को अचीव करने के अंदर करो जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। सो सबसे ज्यादा डर लगने वाली चीजों के अंदर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो जो आपकी फील्ड है उसके अंदर तो 1 महीने की तैयारी के अंदर भी आप हिट ऑन कर सकते हो। सेम थिंग, कई बार रेगुलर माइंडसेट रहता है ना कि आपको कुछ अचीव करके दिखाना है, नॉट फॉर द शेक ऑफ योरसेल्फ बट फॉर द प्राउडिंग, फॉर मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, फॉर मेकिंग योर टीचर्स प्राउड। दैट वाज कंटिन्यूअस whenever in the class any dream topic comes, so that realize continuous motivation, and in I also realize कि हर टाइम उस चीज को कंटिन्यू रखना और अपने सपनों को जिंदा रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप जर्नी स्टार्ट करोगे उसके अंदर डाउनफॉल्स आएंगे। लेकिन सर ने हमेशा यही बात कही है, जब मैंने वापस एज ए ट्रेनर मेंटर ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो उस टाइम पे सर ने एक बात बोली थी, भले यहाँ पे इस जर्नी के अंदर बहुत सारे डाउनफॉल आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, टाइम मैनेजमेंट का होगा, फैमिली मैनेजमेंट का होगा, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत सारे इश्यूज होंगे, बट एक दिन ये सारी लाइफ स्किल, जो स्किल सेट सीख रहे हो और जो जर्नी यहाँ से लेके जाओगे ना, एक दिन आप अपना फ्यूचर देखना बहुत ब्राइट होगा। और उस टाइम सर कई बार क्लास के अंदर ऐसे बातें करते थे, देखना पूजा 1-1.5 साल के बाद में तेरी लाइफ देखना, सो यू विल बी वेरी प्राउड ऑन योरसेल्फ। आई यूज्ड टू थिंक हाँ सर करते रहो, कई बार बोलते हो आप, ऐसे थोड़ी होता है, बट द जर्नी इट इज नॉट लाइक व्हाट सर सेज बट द थिंग्स क्वालिटी सेट एंड द व्हाट सर गाइड, सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट थिंग। आपको यहाँ पे आप आ रहे हो, इसको आना और जाने की तरह एक जर्नी मत बनाओ कि आप भी इंग्लिश जोन आए थे और चले गए, इसको एक लाइफ चेंजिंग यू टर्न वाला फेज रखो कि मैं इंग्लिश जोन गया और उसके बाद में मेरी लाइफ पहले जैसे कभी नहीं हुई। I still realize that I got the admission of 1st September 2020. Why that date I always remember? Because that date is not only another date in the calendar. It is a life changing journey of my life. Still I remember कि इस जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जहाँ पे डाउनफॉल भी आया है, कई बार डिमोटेड फील हुआ है, लेकिन इस चीज को कंटिन्यू रखा, उस चीज को कंसिस्टेंसी रखा, पढ़ाई की, हर चीज को मैनेज किया, और आज हाँ भले घर पे बैठ के लाइब्रेरी जाके कोई कोचिंग जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट द स्किल्स, द नॉलेज, द कॉन्फिडेंस एंड what I see my life ahead more than just a government job, that is not that can never be possible without English zone, क्योंकि जो स्किल सेट यहाँ लिए हैं, थैंक यू, क्योंकि शायद एक गवर्नमेंट जॉब doing the job and coming back to home can be done, okay, but what I see myself, this is not a destination, what I am achieve, like जैसे किसी ने बोला है कि जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया है, so that is not the destination। सर ने ये बात बोली थी, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, this is the starting of another journey, okay। आपको
ये सारी चीजें, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ का जो ये माहौल है, ये आपको कभी भी एक पर्टिकुलर जॉब को सेटिस्फाई होने के लिए और एक जगह फिक्स रहने के लिए कभी भी सर नहीं बोलते हैं। आपने ये बात रियलाइज भी की होगी, कई बार सभी सर आपको हमेशा ये बात बोलते हैं कि एक चीज के अंदर स्टक होके कभी मत रहना, वेदर इट इज द स्टडीज, वेदर इट इज योर जॉब, वेदर इट इज समथिंग, ऑलवेज टेकिंग द challenges is will make you stronger and resilient to the problems which comes. सर इस जर्नी के अंदर कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई कि यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, ये है, पे है, सब कुछ, बट सर ने हमेशा एक बात रखी है कि या तो आप अभी के जो 2-4 साल है उसको अच्छे से एंजॉय कर लो, या फिर आने वाले 60-70 साल को आप बनाने में लगा दो। तो जो भी लोग अभी इस टाइम को ये सोच रहे हैं कि 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और टेम्परेरी पर्पस पे सोच रहे हैं, तो एक बार सोच के देखो, अपनी पूरी 6 महीने की या 12 महीने की जर्नी को देख के आप कुछ सोच रहे हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आने वाले 60-70 साल आप जो सपने आपने देखे उनको अचीव करना चाहते हो। सो दिस जर्नी विल बी अ लाइफ चेंजिंग। अगर यहाँ पे ड्रीम्स के साथ में आओगे, करेज के साथ में आओगे, हार्डवर्क के माइंडसेट के साथ में आओगे, तो आपकी लाइफ जर्नी, आप एक दिन अपने फ्यूचर के अंदर लोगों को प्राउड के साथ में बताओगे कि इंग्लिश जोन की आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ इंग्लिश जोन। और अगर आप इस साथ में आ रहे हो कि आप इस माइंडसेट के साथ में आ रहे हो कि मेरे को इंग्लिश ही तो सीखनी है, सीख लूंगा मैं कैसे, चलो मेरे को 4 महीने हो गए, मेरे को 6 महीने हो गए, डोंट think about the time spent, think the qualities, the change, the skills you wanted to learn, you wanted to change in yourself, have you achieved those? क्या जो चेंजेस आपको चाहिए थे वो आज अचीव हो चुके हैं? जो पर्सनालिटी आपको अपने फ्यूचर के लिए बनानी चाहिए थी, जो चाहिए, रिक्वायर्ड है अपने करियर के लिए, क्या वो आप अचीव कर चुके हो इस 6 महीने के अंदर? अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ बाकी है, सो स्पेंड मोर टाइम। बट ऐसे आने जाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी क्लास के अंदर कई बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि इसको आने जाने की जर्नी मत बनाओ। यहाँ पे आपको सिंपल मिनरल वाटर भी मिल सकता है, सिंपल टैप वाटर भी मिल सकता है, और यहाँ पे आपको डिलीशियस ड्रिंकिंग एंड लेवरेजेस मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू फिल इन योर वाटर बॉटल। आप आते हो, आपको सिंपल बेसिक इंग्लिश, यहाँ पे एक नॉर्मल अयान या फिर तनवीर जैसे स्टूडेंट जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको हिंदी भी बोलने में दिक्कत आती है, वो भी सीख के यहाँ से इंग्लिश जाएंगे और सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स और पूरे अपने आसपास मकराना, अपनी पूरी सोसाइटी को प्राउड फील करवाना है, सो कम विद अ ड्रीम, कम विद अ डेडिकेशन एंड एवरी सिंगल डे काउंटेड, कि आज किस साथ में आ रहे हैं, आज हमें क्या करना है, आज किस तरीके से अपने आप को प्राउड फील करवा सकते हैं। और अगर आप अपने आप पे प्राउड फील करवाओगे तो डेफिनेटली योर पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स एंड योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स विल प्राउड ऑन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच विद योर हार्ट।